reflection of a transverse wave. Now we have to see how a transverse wave is reflected from a denser boundary and from a rarer boundary of a rarer medium. Boys and girls, ये heading है, इसको heading बोलते हैं. Suppose there is a rigid wall here. The wall is very rigid, very strong, very hard. और इस दीवार से हमने एक रस्सी बांध दिया है, ऐसा. और इस रस्सी पर हमने एक धक्का दे दिया, तो रस्सी पर एक पल्स आया. यह काम करते हैं, रस्सी पर एक वेव आई. We started the wave from here, transverse wave, ऐसी ऐसी. टेक्स्ट बुक में पल्स भेजा है. पल्स इज अ सिंगल वेव. यहां से एक पल्स आया और ऐसा टकराया, ऐसा टकराया. तो क्या टकराया? क्रेस्ट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिजिड वॉल. On the rigid boundary, a crest is incident. The wave velocity Vw, wave velocity has direction towards right hand side. The wave is going towards right hand side. The particle velocity is in the upward direction. Particle velocity ऊपर है. इसका मतलब क्या है? The particles of the string rope are going up at this present instant. At this moment, the particles are going up. रस्सी के particles अभी ऊपर उछल रहे. तो हम क्या कहेंगे? This is the particle velocity. And what is the formula for particle velocity? V is equal to plus minus omega. याद करो oscillations. A square minus x square होता था, इस चैप्टर में y square होगा. y dash, y dash. और wave velocity का क्या formula होगा? Wave velocity. V is equal to velocity is equal to wavelength into frequency. N is the frequency. So wave velocity is towards the right hand side. Particle velocity is in the upward direction, and a crest is incident on the rigid boundary. Now, the rigid boundary does not have any place to move. It does not move. So, a crest will be reflected as a trough. A crest will be reflected as a trough, and the direction of particle velocity will change. The particles which were jumping up have now started jumping down. Boys and girls, पढ़ना है तो उसके लिए साइलेंट रहना पड़ेगा, बहुत बड़ी सैक्रिफाइस देना पड़ेगा. तो the particles are going down. So we say the particle velocity is reversed. Particle velocity का डायरेक्शन चेंज हो गया. जो रस्सी ऊपर उछल रही थी उसके पार्टिकल नीचे उछलने लग गए. So the particle velocity has changed its direction. What about the direction of wave velocity? The wave velocity also has changed its direction. अब वेव किधर जा रही है? लेफ्ट की ओर जा रही है. पहले राइट की ओर जा रही थी, अब टकरा के रिफ्लेक्ट होके. Particle velocity is in the downward direction. So the wave velocity is changed, particle velocity is changed, and the crest is reflected as a trough. And similarly, a trough will be reflected as a crest, and there will be a phase change of 180 degrees or pi radian. पूछो फेज चेंज कैसे हुआ? पार्टिकल्स ऊपर उछल रहे थे, अब नीचे उछल रहे. तो जो चीज ऊपर उछल रही थी अब वो नीचे उछल रही, तो कितने एंगल का चेंज आ गया? 180 डिग्रीज का चेंज आ गया. वो पार्टिकल्स ऊपर उछल रहे थे रस्सी के, वो नीचे उछलने लगे, 180 डिग्रीज का फेज चेंज हो गया. तो अब हमको एग्जाम में ये आता है कभी 1 कभी 2 मार्क्स के लिए. तो हम क्या लिखेंगे? बोलेंगे एक्सप्लेन व्हाट इज रिफ्लेक्शन. The bouncing back of a wave in the same medium but in the opposite direction is called reflection of a wave. The bouncing back in the same medium. तो
ये एक पल्स है, ये वेव नहीं, मैंने पल्स बनाया। पल्स में क्या होता है, एक ही क्रेस्ट, ओनली एक क्रेस्ट या ओनली एक ट्रोफ बताते हैं। तो एक वेव पल्स गया, crest is incident on the rigid boundary, and since the rigid boundary cannot move, a crest must be reflected as a trough, or a trough must be reflected as a crest. There is a phase change of 180 degrees or pi radian. Particle velocity is changed as well as wave velocity is changed. Now what will happen if the transverse wave is reflected from the boundary of a rarer medium? Suppose there is a rarer flexible medium, a flexible medium, flexible. Suppose this is a plant, a very soft and flexible plant having a lot of collenchyma in its stem. तो ये बहुत फ्लेक्सिबल स्टेम है और इस पे हमने एक धागा बांध दिया, रस्सी, और यहाँ से शिनचैन ने रस्सी को धक्का दिया ऐसा, तो एक पल्स जनरेट हुआ and that pulse is incident on the boundary of the rarer medium. The wave is going towards right hand side. The wave velocity has direction towards right hand side, and the particle velocity is in the upward direction. Particles are उछलिंग ऊपर, jumping up. इधर बैठ जाओ सामने आके, इधर इधर सागर के पास, सागर किनारे दिखने लग गया। हाँ ठीक है, सागर का नाम लेते से दिखने लग गया। तो सी अब क्या होगा मालूम है, जब ये क्रेस्ट इंसिडेंट होगा यहाँ पर वॉल पर, तो द वॉल इज दिस बाउंड्री इज फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा सा उधर सरकेंगी और क्या होगा, द क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट. The direction of wave velocity will change, but the direction of particle velocity will remain the same. Wave velocity होगी, and there will be 0 degree phase change. Phase change of 0 degree और 0 radian. Phase में कोई change नहीं आएगा. The phase will not change. तो इससे पता चला कि रेनर मीडियम की बाउंड्री से जब कोई पल्स या कोई वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो उसका फेज में कोई चेंज नहीं आता है. टेंसर से टकरा के आती है तो फेज में चेंज आता है. यह है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए. ऐसा ही हमको पढ़ना पड़ेगा. रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव फ्रॉम रिजिड टेंसर बाउंड्री फ्रॉम अ रेरर बाउंड्री. तो टेंसर से कंप्रेशन वापस, कंप्रेशन टकराएगा तो वापस क्या आएगा, ये हमको सोचना होगा. तो सोचते हैं, सोच लेते हैं. हाँ फोटो, ओके. ये 2 मार्क्स के लिए आता है, चिल्लर क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आंसर एंड इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स ओनली. डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती है. द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव. बस आपको ये शब्दों में लिखना पड़ेगा. कंसीडर अ क्रेस्ट इज इंसिडेंट अपॉन द rigid wall of a denser medium, denser boundary. Wall यानी क्या है, denser है. Since the denser medium is not able to vibrate, a crest will be reflected as a trough. There will be a change in wave velocity as well as particle velocity, and there will be a phase change of 180 degrees. So if a crest is incident, it will be reflected as a trough. And if a trough is incident on the rigid denser medium, then it will be reflected as a crest. Crest जाएगा तो ड्रॉप बन के वापस आएगा, और ड्रॉप जाएगा तो क्रेस्ट बन के आएगा. पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों चेंज होगी और फेज हमेशा 180 डिग्री से चेंज होगा डेंसर मीडियम से. ये जो वॉल है, दिस वॉल इज अ डेंसर मीडियम, बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम. इधर डेंसर मीडियम चालू होता है, ऐसा मान लेते हैं. तो बोलूं क्यों, अब reflection of a longitudinal wave from the boundary of, from the rigid boundary, from the denser boundary and from the rarer boundary.
बहुत चिल्लर क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। या तो ट्रांसवर्स आएगा 2 मार्क्स के लिए, या अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल, वो आएगा 2 मार्क्स के लिए। You know longitudinal waves consist of alternate compressions and rarefactions. फिर एक अच्छा बड़ा डेरिवेशन कराऊंगा, मजेदार, बहुत मजा आएगा उसमें। तो सी, यहाँ से वेव्स आ रही है, longitudinal waves, and suppose a compression has fallen against the rigid boundary. This is a compression, and here we have rarefaction. The region where the particles of the medium are widely separated is called rarefaction, and the region where the particles of the medium are crowded together is called a compression or condensation. Condense, dense, compress, press. अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? जब वेव यहाँ आएंगी तो कॉम्प्रेशन क्या बनके रिफ्लेक्ट होकर जाएगा? तो आंसर है अ कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन, क्योंकि जब ये दीवार से टकराएंगे तो पार्टिकल्स एक जगह जमा हो जाएंगे, कॉम्प्रेशन, और दीवार तो सरकने वाली है ही नहीं, तो दीवार भी इनको धक्का मारेगी, तो और कॉम्प्रेशन बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन is reflected as a compression। कब लिखें? यदि वो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेंसर से, and rarefaction will be reflected as a rarefaction। फेज चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा 180 डिग्री से, क्योंकि जो पार्टिकल एक जमाने में ऐसा जाना चाह रहे थे वो ऐसे आ रहे हैं, है ना? तो फेज में चेंज आएगा। और रेरर के बारे में क्या कहते हैं, इधर के बारे में क्या कहते हैं? अगर यहाँ कॉम्प्रेशन टकराता है, अगर रेरर मीडियम की जो फ्लेक्सिबल दीवार है, दीवार भी नहीं है वो तो फ्लेक्सिबल है कुछ, उस पर कॉम्प्रेशन टकराता है तो वो क्या बन के वापस आएगा? तो ये कॉम्प्रेशन जब फ्लेक्सिबल दीवार से टकराएगा तो दीवार उधर सरकेगी, है ना? इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल वॉल और एनी अदर थिंग विच इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो उधर सरकेंगी, तो ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन बन जाएगा और वापस आएगा रेयरफैक्शन बन के। और कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेयरफैक्शन एंड अ रेयरफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन। कब? जब ये रेयर मीडियम से टकराता है, रेयर मीडियम बाउंड्री, रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकराता है ना? तो एक टेक्स्ट बुक हमका दे दो, हम वो देख करके आपको समझाई देता हूँ। When longitudinal waves travel from a denser medium to a rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction. Here reversal of phase takes place, phase changes by pi radian. ठीक है? When compression reaches a rarer medium, हाँ ये longitudinal हमने पढ़े थे। When longitudinal waves travel from a rarer to a denser medium, a compression is reflected as a compression and rarefaction is reflected as rarefaction. There is no change of phase during this reflection. Sorry, phase change नहीं होता है क्योंकि compression की ही तरह टकरा के वापस आ रहा है, और यहाँ पर हो रहा है बल्कि compression जो है वो rarefaction बन के आ रहा है। So जब longitudinal waves rarer medium से denser पे टकराते हैं तो यहाँ से वेव जो जा रही थी ये rarer medium था, और ये डेंस यहाँ से डेंसर मीडियम चालू होगा, ये डेंसर मीडियम चालू होगा इधर। तो डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराई तो कॉम्प्रेशन बन के रिफ्लेक्ट हुआ, और रेयरफैक्शन बन के रिफ्लेक्ट हुआ, फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है? नहीं, when longitudinal waves travel from a denser medium to a rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction. Here reversal of phase takes place.
ठीक है, ये सब तो हम हो गया हमारा पढ़ के। तो ये होगी तो yes, correct. Compression is changing into rarefaction and rarefaction is changing into compression. तो ये हमको याद रखना है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ से रेयर मीडियम से कंप्रेशन आया और ये डेंसर मीडियम में जा रहा। अब डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स को धक्का मारता है कंप्रेशन, लेकिन डेंसर मीडियम तो कहीं सरकना मांगता ही नहीं, तो वो उल्टे का इसको धक्का मारता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। To every action there is an equal and opposite reaction. तो वो आता है, तो compression is reflected as a compression. तो wave velocity की डायरेक्शन चेंज होती है। बस इतना ही हमको याद रखना है। और इसके बाद हम और डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और स्टेशनरी वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स के लिए भी इक्वेशंस लाना है। क्या मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आपको पढ़ाया था? क्या और पढ़ाना चाहिए? When a crest of one wave falls on crest of another wave, the resultant amplitude increases, है ना? The resultant amplitude is equal to the vector sum of the two amplitudes of the two waves. And when the crest of one wave falls on the trough of another wave, they cancel each other out if they are equal, and the resultant intensity is minimum. वो पढ़ो के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्या आता है? आता है श्योर, पक्का सबको आता है? पढ़ा दूं? ओके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यही नाम से तो चैप्टर है महान। अब आपको याद आएगा क्या? हाँ सर ये पढ़ाए थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन यानी एक दूसरे के ऊपर पोजीशन। इफ देयर आर टू वेव्स ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग द सेम पाथ, having same frequency, same time period, ये दो वेव्स है, और अगर ये आकर ऐसे टकरा जाती है, ये क्या बनाने जा रही थी? क्रेस्ट बनाने जा रही थी। और ये वाली वेव भी क्या बनाने जा रही थी? क्रेस्ट। और क्या हुआ? दोनों मिल बैठे। इधर से नोबिता ने धक्का मारा, नोबिता के हाथ में रस्सी का एक किनारा है, और इधर जियान के हाथ में रस्सी का दूसरा किनारा है। नहीं जियान नहीं, शिजुका। जियान रहेगा तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, है ना? एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो नोबिता ने रस्सी का एक किनारा नोबिता के पास है, रस्सी का दूसरा किनारा शिजुका के पास है। दोनों ऐसा ऐसा साथ में सेम फेज में, दोनों ने एक साथ, नोबिता ने हाथ ऊपर करके झटका दिया रस्सी को, तो शिजुका ने भी रस्सी को हाथ ऊपर करके धक्का दिया। जब नोबिता की रस्सी नीचे आ रही है तो शिजुका की रस्सी भी नीचे आ रही है, और एक साथ सेम फेज में दोनों की रस्सियां उछल रही है, दोनों पर वेव्स आ रही है। और दोनों की वेव्स जब यहाँ आई, हालांकि एक साथ आती हुई दिख रही है, ये क्रेस्ट आ रहा है, इधर से ट्रोफ आ गया। बनाना पड़ेगा कि सब लोचा वाचा करके, एक दो शिजुका को इधर पास बुला लेते हैं, नोबिता को पास शिजुका। दोनों ने धक्का दिया, दोनों की रस्सी पास आई, और जैसे ही दोनों की रस्सी आपस में टकराई तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम, है ना? इधर से भी रस्सी आई, जंप करती हुई इधर से भी आई, दोनों तरफ से, and the resultant amplitude became very high. This is called constructive interference. हालांकि वेवलेंथ कम नहीं होती, बट अपनी डायग्राम में हो गई है थोड़ी सी, है ना? तो क्या कहेंगे हम?
when one wave and another wave have their compression falling on when the compression of one wave falls on the compression of another wave, the resultant amplitude becomes maximum and this condition is called constructive interference. और इसी से ब्राइट बैंड मिलता था इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर में, याद करो हमने पहले पढ़ ली हो वेव ऑप्टिक्स, है ना। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो नोबिता ने रस्सी को ऐसा धक्का दिया और ये जो शिजुकी है, शिजुका, इसने रस्सी को ऐसा उल्टा झटका दिया, ऐसा। इसकी रस्सी नीचे जाना चाहती है, इसकी रस्सी ऊपर जाना चाहती है, और जहां दोनों की रस्सियां मिली वहां रस्सी सीधी हो गई, स्ट्रेट हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी रस्सी बोलती मैं नीचे जाऊंगी, इसकी रस्सी बोलती मैं ऊपर जाऊंगी। इसकी रस्सी ऊपर जाना चाहती है और इसकी रस्सी नीचे जाना चाहती है, और दोनों कैंसिल हो गए और बीच की रस्सी स्ट्रेट हो गई, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल था एंड दोनों के एम्पलीट्यूड ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। हम इसके ग्राफ्स से बना के बताते हैं, छोटे छोटे बनाता हूँ। यस, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, और ये रिजल्ट। वेव 1, वेव 2, रिजल्ट कैंसल हो गई। फ्रीक्वेंसी इज द सेम, वेवलेंथ इज द सेम, बट फेजेस आर ऑपोजिट, कैंसल हो गए। और यहाँ नोबिता और शिजुका क्या है? ये एक दुई, और रिजल्ट क्या मिला? बड़ा ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये अकेला 4 सेंटीमीटर, ये -2 है, -2 है, -4 है। क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला रहता है? मुझे कैसे मालूम पड़ा ये 4 सेंटीमीटर है करके? क्योंकि दोनों के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का कोई फॉर्मूला होता है क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड का स्क्वायर प्लस a1 a2 cos 5 क्या ये ऑसिलेशन चैप्टर में आया था? यस। Composition of two parallel SHMs. Resultant R is the resultant amplitude is equal to square root of a amplitude of first wave square amplitude of second wave square to amplitude of first wave into amplitude of second wave into cos initial phase of first wave in minus initial phase of second wave. Phi और initial phase समझता है क्या? शुरू में रस्सी ऊपर उछाला के नीचे उछाला, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। पापा की घड़ी और चाचा की घड़ी ऑसिलेशन चैप्टर में थी। ये किसी को समझता है कि ये कौन सा इंटरफियरेंस हुआ नीचे वाला? वेरी गुड, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। So whenever a destructive interference takes place, we get minimum amplitude, minimum intensity, and ऊपर वाला जो है it is constructive interference. क्या definition है constructive interference की? When a crest of one wave falls on the crest of another wave, or the trough of one wave falls on the trough of another wave, the resultant amplitude becomes maximum and the resultant intensity becomes maximum. This condition is called constructive interference. And destructive, when the crest of one wave falls on the trough of another wave, or the trough of one wave falls on the crest of another wave, the resultant amplitude becomes minimum, and this condition is called destructive interference. Zero कब होगा? जब equal रहेंगे दोनों and opposite रहेंगे तो। क्या साउंड वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता है? क्या साउंड में भी ऐसा होता है? When the compression of one wave falls on the compression of another wave, the resultant amplitude becomes maximum and the intensity or loudness of sound becomes maximum.
when the compression of one wave falls on the rarefaction of another wave, the resultant intensity of the sound becomes minimum. और ऐसा करके दिखाया था एक साइंटिस्ट ने, एंड उस साइंटिस्ट का नाम था क्विंक. एंड ही परफॉर्म्ड क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट. 2 यूट्यूब लिया था उसने. आपका ध्यान आ गया? हाँ, क्विंक QUINCK as क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ये क्विंक ने किया था. क्या किया था? He took 2 YouTubes. इन्होंने 2 YouTube लिए थे. ये एक YouTube है. हाँ, U-shaped tube. और यहाँ उन्होंने इसके अंदर फंसा के रख दिया था दूसरा एक YouTube. YouTube में YouTube. YouTube में YouTube फंसा दिए थे. और इन्होंने और क्या किया? तो इन्होंने इसका यहाँ ओपनिंग निकाला और यहाँ हाँ नहीं, ये एंट्री है, एंट्री, और ये एग्जिट है. सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इसको नाम दिया PQR और इधर से PQR और उन्होंने लेंथ मेजर किया. तो उनको पता चला PQR का जो लेंथ है सपोज 25 सेंटीमीटर है. PQR कितना है? 25. और उन्होंने देखा PAR इसका भी लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर. दोनों का लेंथ इक्वल. और फिर उन्होंने यहाँ एक ट्यूनिंग फोर्क बजाया. कॉलेज में देखे ना ट्यूनिंग फोर्क? यू शेप रहता है ऐसा. और ये दोनों जो यू शेप रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम या प्रॉन्ग ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क. 2 प्रॉन्ग्स रहते ट्यूनिंग फोर्क के, 2 टाइम्स रहते, और वो टाइम्स की एक स्टेम होती है. और टाइम की लोडिंग भी करते हैं और फाइलिंग भी करते हैं. बोलो, लोडिंग और फाइलिंग समझता क्या? नहीं समझता. लोडिंग का मतलब होता है ट्यूनिंग फोर्क के जो 2 प्रॉन्ग्स होते हैं, 2 हाथ होते हैं, उसके ऊपर वैक्स लगाना, मोम लगाना, वैक्स. उससे वो भारी हो जाते हैं और भारी होने से उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, धीरे धीरे वाइब्रेट होते है ना. और फाइल करने का मतलब होता है कि सैंड पेपर से घिस कर उनको पतले कर देना, उनको लचीले कर देना, फ्लेक्सिबल कर देना. नीचे से मोटे मोटे रहेंगे, एकदम मोटे मोटे, और ऊपर से छील छील के पतले कर देंगे. नीचे से मोटे मोटे है ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स, और ऊपर से हमने छील छील के पतले कर दिए. तो इसको कहते हैं फाइलिंग. वैसे भी इंग्लिश में फाइल करने का मतलब क्या होता है? छीलना. नाखून, नेल शुड बी फाइल्ड एवरी वीक. फाइल करना है, काट के छीलना, निकालना. तो फाइल करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है. फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. और लोड करने से या वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है. वैक्सिंग का की ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स की. नहीं तो लोग बोलेंगे हाथ पैर की वैक्सिंग करने की बात कर रहे थे. हाँ, तो ये समझ में आया? हाँ, अनुभव. वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, लोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. तो हमने क्या किया? यहाँ एक ट्यूनिंग फोर्क रखा और 200 हर्ट्ज उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. तो वो वाइब्रेट हो रहा है 1 सेकंड में 200 बार. 200 बार. इधर से भी साउंड वेव निकली, ये पाइप में से जा रहे, कंप्रेशन रेयरफैक्शन इधर से भी जा रहे. अब इधर से कितने कंप्रेशंस आए? 1 2, अपने मन से कुछ भी रेयरफैक्शन, कंप्रेशन,
फिर रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन बड़ा वाला, फिर कॉम्प्रेशन। यहाँ क्या आया? कॉम्प्रेशन आया। 1 2 3 4 कॉम्प्रेशन आए। और ये भी कितना सेंटीमीटर पे पी है? 25। तो यहाँ से भी एक कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। ये अपने मन से रफ कर रहा हूँ मैं। और फिर 1 2 कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, और ये कॉम्प्रेशन आ गया यहाँ पे डबल। तो इधर भी 25 सेंटीमीटर पीआर और पीक्यूआर। तो इधर से कॉम्प्रेशन आया है एग्जिट के पास, और इधर से भी कॉम्प्रेशन आया, और इधर ने क्विंट ने इधर अपना कान लगाया, कान से कान, उसने कान लगाया अपना। जैसे कान लगा तो जोर की आवाज आ रही। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, when a compression of one wave is overlapping the compression of another wave, constructive interference has taken place and the intensity of sound has become maximum because the amplitude has become maximum resulted. So इसका इसके कान में जोर की आवाज आ रही। फिर उसने क्या किया? इसको 1 सेंटीमीटर बाहर खींच लिया। पाइप में पाइप फंसा है, इसको इधर खींच लिया, थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ऐसा इधर के पाइप को खींच के बाहर निकाल दिया। बहुत इज्जत था, बाहर खींच के निकाल दिया पाइप को ऐसे। तो उससे क्या होगा? PAR रास्ता लंबा हो गया। PAR हो गया समझो 26 सेंटीमीटर, 26, और इधर ये PQR हो गया उतना ही है PQR। अब दोनों के पाथ में डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस। इधर का पाथ छोटा रास्ता, इधर का पाथ लंबा रास्ता, तो पाथ डिफरेंस आ गया। कितना पाथ डिफरेंस आया? तो λ/2 का पाथ डिफरेंस आ गया। और हम पढ़ चुके हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इंटरफेरेंस में 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, odd λ/2। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी odd λ/2। ये तो वही होगा जैसे इंटरफेरेंस में होता था, वही फॉर्मूला बन गया यहाँ। तो odd into λ/2 जैसे जैसे होता था, जब 26 सेंटीमीटर कर दिया, आवाज ही नहीं आ रही। इधर से ट्यूनिंग फोर्क बज रहा है, इधर से आवाज जा रही है, इधर से आवाज जा रही है, लेकिन इधर से जो कॉम्प्रेशन आ रहा है 25 सेंटीमीटर वाले का, 26 वाले की तरफ से घूम के रेयर फैक्शन आ जा रहा है। कॉम्प्रेशन पे रेयर फैक्शन मिल जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और आवाज ही नहीं आ रही। दो जगह से आवाजें आ रही है, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट आवाज नहीं आती। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, समझ गए? फिर क्या किया उसने? 27 सेंटीमीटर कर दिया, फिर आवाज आई जोर से, फिर 28 किया, नहीं आई, गायब हो गई आवाज। 29 किया, जोर से आवाज आई। 30 किया, आवाज नहीं आई। 31 किया, जोर से आवाज आई। 32 किया, आवाज नहीं आई। 33 किया, आवाज ही नहीं आई, नहीं आई, क्योंकि पाइप में से पाइप निकल के तुम गया, रास्ता ही खत्म हो गया। समझे? पाइप भी तो निकल जाएगा ना, ज्यादा खिंच खिंच के, इसलिए आवाज ही नहीं आती। हाँ, लोहे का पाइप है, पाइप का भी, प्लास्टिक का भी रख सकते। तो ऐसी बात है, ये आपको लगती है पता है। तो पता चला साउंड वेव्स का भी इंटरफेरेंस होता है, वो भी एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर हो सकते हैं। तो अब ये वीडियो क्लोज करें। अब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे काय के लिए?